Good morning, students. As we have introduced the concept of center of mass and we were doing numericals on center of mass. Today we will do few more numericals on this concept. Here in HCl molecule, separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of center of mass of the molecule. What is given? Given that chlorine atom is 35.5 times as massive as a hydrogen atom, and nearly all the mass of an atom is concentrated in all its nucleus. So basically we have been given here HCl molecule where hydrogen and chlorine, these two atoms are separated by a distance of 1.27 angstrom. Now what is given? Here it is given that chlorine atom is 35.5 times that of mass of hydrogen atom. So on the basis of these informations given, we have to locate center of mass of this HCl molecule. So here in HCl molecule, this hydrogen and chlorine are separated by a distance of 1.27 angstrom, and here it is given chlorine atom is 35.5 times massive as hydrogen atom. So where will be its center of mass lie? And we are taking, let center of mass is lying at a distance x from chlorine. So you can take this x distance from hydrogen also. It's your choice. I am taking it from chlorine. So now the separation distance between hydrogen and center of mass will be 1.27 minus x. Now here we don't know whether it will lie closer to hydrogen and chlorine, but one point theoretically we have studied that if mass is heavier, then center of mass lie closer to heavier mass. That's why we have chosen C point closer to Cl, chlorine. But if it is not clear to you, just you can take this point here, not exactly midway, but maybe towards hydrogen, maybe towards chlorine. You can just start it with any point. Now, second step while doing this numerical is to take origin. Now you can take this center of mass, this to be at origin, or this hydrogen to be or chlorine to be at origin. It's entirely your choice. You can take this point as origin, center point as origin, or this chlorine point, chlorine position point as origin. I will explain it in both the ways. I will take this C, this center of mass is at the origin. So in that particular case, because center of mass is at origin, as we know that R equal to M1 R1 plus M2 R2 by M1 plus M2. So if we take mass of hydrogen atom is M. So mass of chlorine atom, I can write it as 35.5 times M. Now if center of mass is at origin, so I can write it as M1 R1 plus M2 R2 will be 0. Why? Because if I will take this it to be 0. So this denominator term, चलिए हम इसको पूरा ही लिखते हैं. अगर ये फॉर्मूला है तो ये डिनोमिनेटर टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 भी 0. अब M हम क्या लेके चल रहे हैं? M1 इज टेकन एज मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज M, एंड R1 डिस्टेंस हो गया इसका, दिस इज योर 1.27 minus x plus chlorine atom, this is 35.5 times that of M into x. This is equal to 0. So I can write it as M into 1.27 minus x equal to minus 35.5 mx. Here M will be cancelled with it. Here just negative sign, just see here this negative sign indicate position of H and L. These are on the opposite side of center of mass.
So this negative sign, this only indicate the position. You can see in the figure that here if this is the origin, hydrogen is lying to its left and chlorine is lying to its right. So we can just drop this negative sign in the calculation purpose. Why? Because this is giving only indication of position of atoms. So here 1.27 minus x equal to minus 35.5 into x. अब हम इसको जस्ट रीअरेंज करें. 1.27 इक्वल टू x. This is, we are dropping this negative sign, so it will be plus. So plus 35.5x. Just be careful, you are dropping this negative sign because here negative sign only indicate the direction. So now 1.27 equal to 36.5x. So what will be the value of x? 1.27 upon 36.5. So this will approximately comes out to be 0.035 angstrom. Right? So you can see if this distance x is 0.035, so if you can calculate, if you can easily calculate the distance h position of this hydrogen from the center of mass, it will be more. So you can conclude from here कि x की वैल्यू हमारी आई है 0.035 approximately. So ये डिस्टेंस कम है as compared to it. It means जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, it always lie towards heavier mass. It lie closer to heavier mass. So you can see all the steps what I have done. Here in these steps we have taken this center of mass as origin. It is not compulsory. You can take this as origin. Let me take this hydrogen as origin. I am just giving you a hint. Just you can complete it. Let this hydrogen is at origin and let this position is 0. Right? Let it be x1 to be 0 and this center of mass position is x and this x2. This is 1.27 angstrom. यानी टोटल डिस्टेंस इससे कितना हो गया 1.27 एंगस्ट्रॉम. अब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. हमने सिर्फ x इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है. अब x को हमने सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है. तो देखिए अगर हम कहते हैं मास m1 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास m2 हम ले रहे हैं 35.5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज this is 35.5 times that of mass of hydrogen, this is mass of chlorine atom. तो अब m1 m2 हमें मालूम है. x1 को हम 0 ले रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लिया है. x2 हम 1.27 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं. तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x m1 दिस इज m इंटू 0 प्लस m2 इज 35.5 टाइम्स मास इंटू 1.27 डिवाइड बाय टोटल मास हो गया यहाँ पे m प्लस 35.5 m. तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 35.5 m इंटू 1.27 डिवाइड बाय 36.5 m. m से m कैंसिल. और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रहा है 1.235. इसको चेक करके देखना, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे ये डिस्टेंस आएगा 1.235. तो अब आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस तो डिफरेंट आया एज कम्पेयर टू दिस वन. देखिए बेटा हमने ऊपर वाले केस में x की वैल्यू हमने ली थी क्लोरीन एटम से. तो अगर हम इस डिस्टेंस को कंपेयर करना चाहें तो देखिए 1.27 माइनस एक्स क्या होता है 1.27 माइनस 0.035. ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी जो मैंने अभी आपकी लिखी है. जस्ट चेक इट. देखिए हमने ये जो डिस्टेंस लिया है एज पर दिस अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास जो सेकंड केस में और इस केस में हमने निकाला है, अब देख सकते हैं ये दोनों पोजीशंस आइडेंटिकल है. बेसिकली इस केस में भी हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1.27 माइनस एक्स. अब सेकेंड केस जो हमने यहाँ लिया है तो इस केस में ये एक्स डिस्टेंस किससे है हाइड्रोजन से, यानी कि ये डिस्टेंस सेम है. तो चाहे आप इस मेथड से कर दो या आप यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे ऊपर वाले मेथड से, दोनों रिजल्ट्स आइडेंटिकल हैं, इनमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है. क्योंकि ये हो सकता है कि आप मेजरमेंट क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हो
यू कैन सी हियर, यहाँ हमने क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x लिया है। आप इस डिस्टेंस को भी x ले सकते हैं, आप इस डिस्टेंस को भी x ले सकते हैं, इट्स एंटायरली योर choice. So origin can be taken at any point, either at center of mass or at either at hydrogen or at chlorine. So now I hope this numerical is clear to you. This is of NCERT exercise. Now next numerical. From a uniform disk of radius r, a circular section of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from center of original disk. Locate center of mass of resulting flat body. See, this is very important kind of numerical. See, in this case, the same concept of center of mass we will use, but main point is there that certain cross section has been cut from this uniform disk. So how we will use that simple formula of center of mass in applying here. This is very important kind of numerical. This type of numerical you will find in NCERT exercise also. So understand it very carefully. See, अब in this case, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है from a uniform circular disk. This is having radius r. This complete radius r has been given. Let O be the center. Now a circular section of radius r by 2, यानी एक सेक्शन कटता है जिसकी रेडियस r by 2 है, इसमें से हम एक पोर्शन कट करते हैं. अगेन अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस r by 2, इट इज कट आउट. तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक ऐसा पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन जिसका डायामीटर आप कह सकते हो एग्जैक्टली अगर आप बनाएं तो ये कितना है, r के इक्वल, यानी रेडियस कितनी है, r by 2. I am just redrawing it so that it will give you more clear picture. This is a figure which I have drawn. This is center O and this is the center of this cut portion. Like this is radius r by 2. अब देखिए, सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जब हमें करना होता है तो हमें क्या देखना है कि अगर हम ये कंप्लीट डिस्क ले रहे हैं, इसमें से ये पोर्शन कट किया, यानी ये पोर्शन रिमूव कर दिया, यानी अब मास कहाँ है, इस रिमेनिंग पोर्शन में. जब मास रिमेनिंग पोर्शन में है तो इसका मतलब ये रीजन हैवियर हो गया, यहाँ मास बढ़ गया, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ शिफ्ट कर जाएगा. सबसे पहले हमें यही पॉइंट समझनी है कि एक मान लो कोई डिस्क है, उसमें से हमने कोई रीजन कट कर दिया तो ये पोर्शन तो अलग हो गया. अगर ये रीजन नहीं कटा होता तो सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही था, लेकिन जब यहाँ से ये रीजन कट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला पूरा मास जो बच गया, दैट इज इसके कोरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास कहीं इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा. और हमें इस पोजीशन, मान लो इसको मैं P से इंडिकेट कर दूं, तो इस पॉइंट P की लोकेशन बतानी है कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया है. तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं लेट M हम इंडिकेट करते हैं, दिस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क. देन अब इस कंप्लीट डिस्क का मास, जब इसमें से ये पोर्शन कट नहीं किया है, उसका मास हम क्या लें, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क. अब ये देखिए, अगर ये लेना है तो क्या होगा, इस बिगर कंप्लीट डिस्क की रेडियस है r, तो इसका एरिया हो गया पाई r स्क्वायर. राइट, इस पूरे डिस्क का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट कंप्लीट डिस्क. अब हम ले रहे हैं कि ये जो पोर्शन हमने रिमूव किया है, तो यानी इस रिमूव पोर्शन की रेडियस है r by 2. तो अगर हम कहें मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर इन शेप. अब लेट मी टेक इट एज m. टोटल मास को हमने m से लिया और इसको मैं m1 से इंडिकेट कर देती हूँ. ये हमारी चॉइस है, हम कुछ भी सिंबल दे सकते हैं. तो अब ये कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क multiplied by area of this circular portion that has been deducted. So it will be r by pi r by 2 square. So कितना आ जाएगा यहाँ से, m pi r square by 4. अब यहाँ से अगर हम देखें m pi r square, जिसको हमने लिया m, तो क्या मैं m1 को लिख सकती हूँ कैपिटल M by 4.
देखिए मास ऑफ डिस्क को हमने लिया m, अब रिमूव पोर्शन का मास अगर हम इस कैपिटल M के टर्म्स में देते हैं, यानी कितना पोर्शन कट कर दिया, टोटल मास का 1/4 पोर्शन कट कर दिया है। तो अब हम अगर ये देखें कि मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O डैश है, तो O पॉइंट पे पूरा मास M कॉन्सेंट्रेटेड है, कंप्लीट डिस्क का मास, और O डैश पॉइंट पर M1 कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अब ये वाला रीजन जब हमारा कट कर गया तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए अब हम सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम इसको ही हम ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा, राइट। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर m मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पॉइंट O and m dash m1 you can say m1 is concentrated at point O dash. तो after this circular disc of this mass m1 is removed, अब रिमेनिंग पोर्शन, तो यहाँ पर आप रिमेनिंग पोर्शन कंसिस्ट ऑफ, यानी ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया इसमें बेसिकली क्या रह गया कि एक तो मास इस पॉइंट पर था ओरिजिनल मास, और ये वाला मास यानी इतना मास डिडक्ट कर दिया। तो इस पूरे केस में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी कोई मास रिमूव होगा तो हम m1 तो हम ले लेते हैं m, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये स्मॉल m1 तो हो गया टोटल मास ऑफ द डिस्क, और m2 स्मॉल m2 क्या हो गया, इसको हम माइनस m1 कर देते हैं। ये पॉइंट ध्यान से रखिए, ये पॉइंट जब आप समझ लेंगे तो आपको इस पॉइंट के बाद सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने डिडक्ट किया है, ये वाला सर्कुलर सेक्शन यानी ये जो पोर्शन है जिसका मास m/4 है, इस पोर्शन के मास को हमने डिडक्ट कर दिया। तो डिडक्ट कर दिया तो हम इस रिमूव्ड मास को माइनस m1 लेते हैं, जिसको मैंने इधर इंडिकेट किया है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम यही चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब m1 की जगह हम ले रहे हैं, यहाँ पर m1 की जगह हम ले रहे हैं m, अब x1 यानी ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गई 0। अब m2 की जगह हमने लिया माइनस m1, और इसकी पोजीशन, इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्योंकि r/2 रेडियस है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा r/2, तो इसको ले लेंगे r/2 डिवाइड बाय टोटल मास है m1 m, और m2 को हमने रिप्लेस किया m1 मास से, तो ये हो गया m1। दिस इज द मेन पॉइंट, आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर दिस पॉइंट। जब भी हम कोई पोर्शन कट करते हैं तो हम रिमूव्ड पोर्शन को माइनस m1 कर सकते हैं, तो दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। अब यहाँ m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो m1 आपके पास है, दिस इज माइनस m1 that is m/4 r/2 डिवाइड बाय m माइनस m/4, जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3m/4, राइट। अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने निकाली थी। m की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, स्मॉल m पाई r स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस स्मॉल m पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 r/2 एंड डिवाइड बाय 3/4m। अब 3/4m, इसमें भी तो हमें m की वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी जगह मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ 3/4, और ये हो गया स्मॉल m पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से m पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो ये रिज़ल्ट बचा है इसमें से ये 4, अब यहाँ से अगर हम देखें इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस r/8 डिवाइड बाय 3/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो ये कट करके कितना होगा, माइनस r/6। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r/6। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट पे है, नेगेटिव माइनस r/2, दैट मीन्स ओरिजिन से r/6, r/2 नहीं है, सॉरी, इट इज़ r/6, ओरिजिन से r/6 डिस्टेंस पे है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दैट दिस पोजीशन इज एट द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, दैट इज एट द रेफरेंस पॉइंट।
सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहले पहला स्टेप रखना है हमें मास पर यूनिट एरिया लेना है, क्योंकि सर्कुलर डिस्क हम बात कर रहे हैं। फिर हम कंप्लीट डिस्क का मास निकालेंगे, फिर रिमूव्ड पोर्शन का मास निकालेंगे। जब हमने ये मासेस निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंगली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ओ पर, और रिमूव मास जिसको हम नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव किस लिए लेते हैं, क्योंकि ये मास हमने रिमूव कर दिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह m2 की जगह हम -m1 पुट करते हैं। फिर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैपिटल M यानी मास ऑफ कंप्लीट डिस्क की टर्म्स में हम इसे लिखते हैं। फाइनली हम इसको मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ डिस्क की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो दिस इज योर रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू सिमिलर वन मोर न्यूमेरिकल। नाउ लेट वी टेक वन मोर न्यूमेरिकल of same kind. From a uniform circular disc of diameter d, capital D is given, a circular hole of diameter d by 6 and having center at a distance of d by 4 from the center of disc is cut out. इसमें भी आपको एक पोर्शन कट करने को दिया हुआ है, लेकिन उसमें उसकी पोजीशन अलग गिवन है एज कंपेयर टू प्रीवियस। क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर d by 6 है और उसका सेंटर कहाँ है कि सेंटर ऑफ डिस्क से d by 4 डिस्टेंस पे है। तो पहले हमें इस पॉइंट को देखना है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जैसे पिछले केस में किया बिल्कुल वही करना है, बस हमें वो 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं कि कट पोर्शन का मास कहाँ लाई कर रहा है और एग्जैक्ट बॉडी का, एग्जैक्ट सर्कुलर डिस्क का मास कहाँ लाई कर रहा है। देखिए अब इस केस में दिस इज अ सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ डायमीटर d। सो इसकी रेडियस हो गई कितनी, d by 2। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं इसका कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेकेंड पॉइंट है सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर d by 6, यानी मान लो हमने ऐसा कोई एक होल क्रिएट किया है इस डिस्क में जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, d by 6। लेकिन कंडीशन यह है कि इसका जो सेंटर है हैविंग सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ d by 4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, यानी ये पूरा डिस्टेंस बेसिकली कितना गिवन है, d by 4, हैविंग सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ d by 4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो अभी इसका मतलब ये वाला पोर्शन कट किया हुआ है। अब आपको रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेट स्मॉल m इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क। स्टेप्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब हम लें मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, इसको हम कैपिटल M से इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास m मल्टीप्लाइड बाय पाई। अब डायमीटर d है तो रेडियस कितना हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले डिस्क का, दिस इज d by 2, तो इसका हो जाएगा d² by 4, यानी मास ऑफ डिस्क निकाल लिया अब हमने। अब हमें निकालना है इस पोर्शन जो कट किया है जिसका डायमीटर गिवन है d by 6, तो इसका मास निकालना है। तो आप कहेंगे मास ऑफ कट पोर्शन या रिमूव पोर्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं m1 से या m' किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय, अब इस पोर्शन का एरिया। तो अगर मैं यहीं से कंपेयर कर लूँ कि यहाँ पर ये है d डायमीटर था तो पाई d² by 4 था। अब पाई बाय 4 तो ऐसे ही रखा, d की जगह हम क्या ले लें, d by 6, d by 6², राइट। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m पाई d² by 4 into 36, 6 into 6 36, तो ये हो गया m पाई d² by 144। तो चाहे मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊँ या फिर मैं इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में रखना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे कि ये m पाई d² by 4 तो हो गया मास ऑफ डिस्क, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कैपिटल M by 36। चाहे तो ऐसा लिख लो चाहे ऐसा, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट मास ऑफ डिस्क की फॉर्म में रख रही हूँ। सो आई हैव रिटन इट लाइक दिस। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम कहते हैं कि ये जो मास ऑफ कट पोर्शन है, मान लो इसका मास कहाँ लाई कर रहा है, इस डिस्क के सेंटर पे। अब हमें निकालना है कि रिमेनिंग पोर्शन का मास कहाँ लाई करेगा। तो हम कहते हैं मान लो हमने फिर से कोई पी पॉइंट लिया विच इज़ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस
O, जिसको हम ओरिजिन ट्रीट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को ओरिजिन लेके चल रहे हैं। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, P पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। तो फर्दर आप लगाइए फॉर्मूला x इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सबसे पहला पॉइंट m1 को हम क्या लेंगे, कैपिटल M, और m2 को हम क्या लेंगे यहाँ पे, दिस विल बी माइनस m1। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। अब x1 को देखो, x1 क्या है, 0 है। x1 0 कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर मास, कंप्लीट डिस्क का मास किसके सेंटर पर है, ओरिजिन पर है। तो ओरिजिन पे इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, 0। सो x1 0। अब x2 कितना होगा, x2 कितना होगा, d/4। x2 d/4 क्यों है, क्योंकि इसका सेंटर जहाँ पर कट पोर्शन का मास लाई कर रहा है वो कंप्लीट डिस्क के मास से, कंप्लीट डिस्क के सेंटर से बेसिकली d/4 के डिस्टेंस पे। तो अब हमने ये सारी पोजीशन निकाल ली है। तो अब अगर हमें ये पॉइंट मिल गए हैं तो अब हमें सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x क्या हो जाएगा, m इंटू 0 माइनस m1 इंटू d/4 डिवाइड बाय m माइनस m1। तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, माइनस दिस इज़ m1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 को हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ माइनस m/36। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, माइनस m/36 इंटू d/4 डिवाइड बाय m माइनस m/36। तो ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 35/36 m, कैपिटल M रहेगा, ये ध्यान रखना है इधर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो फैक्टर्स बेसिकली कैंसिल ही हो रहे हैं। मैंने पिछले केस में उसको एरिया की फॉर्म में लिख कर दिखाया था ना। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इससे m से m कैंसिल कर दें और 36 से 36 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस d/4 डिवाइड बाय 35। तो ये हो गया इंटू 35, तो ये हो गया माइनस d/140। यानी दिस विल बी द पोजीशन ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। एंड नेगेटिव साइन अगेन वही इंडिकेट करता है कि P पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लाई टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। इस पॉइंट में ध्यान रखिए, पिछले केस में, पिछले सिमिलर न्यूमेरिकल में मैंने m को पाई r स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बट दैट इज़ ओनली अ स्टेप टू शो यू। अब आपको क्लियरिटी हो गई है, तो अब यहाँ पर मैं नहीं शो कर रही, क्यों, क्योंकि m से m डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो हमें कैलकुलेशन को शॉर्टन कर सकते हैं यहाँ से। सो दिस वे यू कैन डू दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। अब इसी तरह का एक NCERT एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल है दैट यू पीपल विल ट्राई बाय योरसेल्फ, दिस विल बी एज अ होमवर्क। NCERT exercise question you will do. That question is exactly on the same pattern. So you will do that question. I think NCERT question we have covered. इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो NCERT एक्सरसाइज का था। तो एक स्टेटमेंट मैं आपको देती हूँ, वो स्टेटमेंट आपको ट्राई करेंगे। So now you will do this as this will be as a homework for you people. So here you will just go through a circular plate of uniform thickness has diameter 56 centimeter. A circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate. Find center of mass of remaining portion. So this question will be homework for you. So if you understand these two numericals, you can easily solve this problem. So now just practice all the numericals we have covered on center of mass and give more practice to extra questions. Thank you. Have a nice day.